Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss the video of part 6 of basic of accounting. Dear student, I want to discuss with you about basic of accounting, which are related to fundamental knowledge of accounting, in which we provide about what is accounting and types of accounting and how to create accounting and what is the basic concept of accounting and different points. Today I am going to discuss about the users of accounting information and their needs or parties interested in accounting information. In the previous video, I was discussed about the accounting information. Actually, at the end of the year, each organization or company or business institution prepare final accounts, and in which they prepare profit and loss account, balance sheet, and after preparation of final account, the company also prepare accounting reports, which help the management in decision making in future, and what is the impact of decision making of management in the current year, and what will be the decision in future on the basis of this accounting information. And different creditors and investors also interested in accounting reports or accounting information of any company, because they invested in company and want to get maximum dividend, maximum profit from their investment. Are interested in accounting information. Accounting information is used by various group of people who have contract with the business enterprises. They use accounting information in order to satisfy some of their varied need for information. These users may be classified in two groups. First, internal users, and second, external users. जो डिफरेंट पीपल्स हैं उसमें दो ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया गया है, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स. जहाँ पे हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करेंगे तो इंटरनल अंदर की बात हो गई और एक्सटर्नल बाहर की बात हो गई. यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो लोग होंगे वो आपके इंटरनल यूजर्स होंगे, और जो कंपनी या बिजनेस इंस्टीट्यूशन के बाहर के लोग होंगे वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स होंगे. तो ये लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, इसलिए ये रिपोर्ट इशू की जाती है. इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल यूजर्स के बारे में. इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज ओनर्स और मैनेजमेंट. जो इंटरनल यूजर्स होते हैं वो डायरेक्ट बिजनेस इंटरप्राइजेस से कॉन्टेक्ट में होते हैं, इंटरेस्ट में होते हैं. जैसे हम बात करें ओनर की, जो बिजनेस इंटरप्राइजेस का जो ओनर रहता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर रहता है, जैसे आप रतन टाटा की बात करें तो टाटा इंडस्ट्रीज के ओनर हैं, तो वो अपने कंपनी के अकाउंट के इंफॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे. वैसे ही जो टाटा कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा वो भी इंटरेस्टेड होगा कि उनका जो डिसीजंस हो ड्यूरिंग द ईयर है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन पे, और क्या प्रॉफिट अर्निंग हुई है, क्या प्रॉफिट इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, एंड क्या इफेक्ट पड़ा है उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. तो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं. एंड एम्प्लॉयज भी इसमें आते हैं. एम्प्लॉयज आल्सो इंटरेस्टेड इन because if company earn more profit, then they get bonus from the company.
So employees are also interested in the accounting information. So the most important users, internal users of accounting information is owners and management. फर्स्ट हम ओनर्स की बात करेंगे। तो ओनर्स आर पर्सनल इन्वेस्टर्स जो उस कंपनी को इस्टेब्लिश किया है, जो इन्वेस्ट किया है कंपनी में, वो कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड एज सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। जो ओनर्स होता है वो ऑलरेडी वो कैपिटल इन्वेस्ट किया रहता है, पूंजी लगाया रहता है उस बिजनेस में, तो वो चाहेगा कि उसकी वो अपनी कंपनी की या अपने बिजनेस इंटरप्राइजेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जाने और एक्चुअल पोजीशन क्या है बिजनेस की, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसके बारे में जानने की इच्छा रखता है। They also want to know whether the profits are increasing or decreasing, what are the reasons for the increase or decrease in the profit, और वो ये भी जानने की कोशिश करता है कि हमारे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, और अगर बढ़ घट रहा है तो किस कारण से बढ़ घट रहा है, ये भी जानने की इच्छा होती है। What is the value of fixed assets and floating assets of the business, are such information provided by accounting, और वो ये भी जानना चाहता है कि उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पास कितने फिक्स एसेट हैं, कितने फ्लोटिंग एसेट्स हैं। फ्लोटिंग एसेट्स की बात करेंगे तो कैश इन हैंड, कैसेट, बैंक डेब्टर्स वगैरह, ये सब सारे आपके फ्लोटिंग एसेट्स में नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपके, ये तो ओनर्स हो गए। नेक्स्ट आपके पास जो सेकेंड इंटरनल यूजर्स है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द efficient and smooth running of the business enterprises. Their needs are met by the accounting information provided by published report of the business enterprises, such as profit and loss account, balance sheet, and cash flow statement. However, most of the needs of management are met by unpublished internal reports, which are prepared most frequently to meet the specific requirements of management. Such unpublished or internal reports provide the information relating to the cost of product, speed of increase in the cost of production, profitability of each product, reasons for increase or decrease in sales or profit, and estimates of future sales and profits, etc. Management has direct access to these unpublished or confidential reports which contain valuable information not available to external users. तो ये रिपोर्ट्स होते हैं वो क्या इंटरनल यूजर्स के लिए क्या अवेलेबल है और क्या एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होते हैं। जो इंटरनल यूजर्स के लिए होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स के वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। जो मैनेजमेंट होता है वो ये देखना चाहता है कि जो प्रॉफिट बढ़ा है वो हमारे किस डिसीजन के कारण बढ़ा हुआ है, और जो वो फ्रीक्वेंटली वो रिपोर्ट अपना देखते रहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कितना कैश आया, कितना कैश गया पूरे ड्यूरिंग द ईयर, पूरे एक साल के अंदर, क्योंकि जो अकाउंटिंग होती है वो पूरे एक साल की होती है। तो ड्यूरिंग द ईयर वो अपने डिसीजंस को देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा सेल्स और प्रॉफिट पे। तो ये सब सारी चीज़ें मैनेजमेंट इसमें इंटरेस्टेड होता है ताकि वो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग वो कर सके, जिससे कि कंपनी को और वो प्रॉफिटेबिलिटी दे सके। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में। तो एक्सटर्नल यूजर्स इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस इंटरप्राइज बट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये एक्सटर्नल यूजर्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे सपोज करिए हम बात करें बैंक की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, क्रिएटर्स की बात करें, जो लेनदार होते हैं कंपनी के, सप्लायर्स की बात करें, कस्टमर की बात करें, तो ये लोग फ्यूचर इंटरेस्ट, कंपनी के फ्यूचर में इंटरेस्ट रखते हैं कि अगर कंपनी का ये कंडीशन अगर अच्छी है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये क्या भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो इस तरह की चीज़ें एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट। वो इंटरनल रिपोर्ट के बारे में, जो इंटरनल यूजर्स के जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्योंकि ये मैनेजमेंट के पार्ट नहीं होते। मैनेजमेंट के जो पार्ट होते हैं उनके लिए अलग रिपोर्ट इशू की जाती है, जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनके लिए अलग रिपोर्ट इशू की जाती है।
तो enterprises and hence make use the external published report such as profit and loss account, balance sheet and cash flow statement. The external users are potential new investors, creditors, lenders, employees, government, etc. given below. ये सब external users में ये कुछ external users हैं जिनके बारे में आपको information और given below. सब फर्स्ट काम करते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. फॉर एग्जांपल दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, जो पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स नीड इंफॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी. मतलब वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, और उसके द्वारा जो मुझे रिवार्ड मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में या प्रॉफिट के रूप में वो क्या होगा. सेकंड की बात करें शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स. एग्जाम्पल में सप्लायर्स आते हैं. सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ट्रेडिंग. सप्लायर्स का मतलब जो क्रेडिट का मतलब होता है उधार, और क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार या सप्लायर्स. जो सप्लायर्स होते हैं जो गुड्स सप्लाई करते हैं कंपनी को, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो सप्लायर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनका काफ़ी पैसा उस कंपनी में फंसा रहता है. अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में रहती है तो कंपनी से उसका पैसा रिसीव हो जाएगा. दे वांट इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट. दे वांट टू नो वेदर द अमाउंट ओइंग द will be repaid when due in whether they should extend, maintain or restrict the credit to the enterprises. वही जान रहा था कि मेरा पैसा जो मैंने कंपनी में दिया हुआ है वो मुझे रिसीव होगा या नहीं. ऐसे ये तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हुए. लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स की बात करें सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो लॉन्ग टर्म जो जैसे बैंक है, कोई कंपनी को लोन दिया है, कोई बिजनेस इंस्टीट्यूशन को लोन दिया है, वो आते हैं आपके. तो दे वांट टू जज वेदर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देयरऑफ विल बी रीपेड व्हेन ड्यू एंड वेदर दे शुड एक्सटेंड, मेंटेन और रेस्ट्रिक्ट द लॉन्ग टर्म लोन्स टू द एंटरप्राइजेज. वो इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी सारा लोन कंपनी को दिए रहते हैं, और वो कंपनी रीपेड, उनका लोन रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब उनके मूल धन के साथ जो इंटरेस्ट ब्याज होता है क्या वो दे पाने में सक्षम है कि नहीं कंपनी. ये चीज़ उनको देखना. अगर ऐसा नहीं है तो उस पर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, प्रोहिबिशन लगा देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे उनको लोन लेने पर. एम्प्लॉयज़ की बात करें. एम्प्लॉयज़ नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस टू assess the ability of business to pay higher wages and bonus. They may also use financial statement accounting information to ascertain whether various amount due to them such as provident fund is being deposited regularly. जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से उनका वेजेज या सैलरी जो उनकी फीस होगी कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, तभी तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी या वेजेज इंक्रीज करेगी या फिर उनको बोनस देगी, या फिर दूसरे तरह से उनके जो प्रोविडेंट फंड है उसमें वो डिपॉजिट करेगी, रेगुलरली डिपॉजिट करेगी, जिससे कि उनको एक अलग से भी बेनिफिट मिलेगा, सोशल बेनिफिट मिलेगा. टैक्स अथॉरिटी की बात करें तो जो इनकम टैक्स होते हैं, सेल टैक्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो भी टैक्स अथॉरिटी भी इनमें इंटरेस्टेड रहती है. गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, गवर्नमेंट के भी एजेंसीज हैं जो उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें टैक्स रिसीव होगा. नेक्स्ट बात करें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप. जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो भी इंटरेस्टेड है. कंपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी में रहती है तो कंपनी भी अपने ज़्यादा इम्प्लायमेंटेशन बढ़ेगा. कंपनी जब ग्रोथ करेगी तो उसमें इम्प्लायमेंटेशन भी बढ़ेगा, इम्प्लायमेंटेशन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है, जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी लोगों का इंक्रीज करेगा. पर कैपिटा इनकम है वो भी लोगों का इंक्रीज करेगा. आप जानते हैं कि जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो आपका नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा. तो इस तरह से जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप है. बात करें कंपटीटर्स की तो आप जानते हैं कि इस समय ढेरों सारे जो MNCs हैं तो वो कंपनी के कंपटीटर्स होते हैं. तो कंपनी भी
किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है, हम कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं मार्केट में। तो इस तरह के जो कॉम्पिटिटर्स जो कंपनियां होती हैं वो भी इंटरेस्टेड होती है इसमें। तो ये आपके एक्सटर्नल यूजर्स है। तो इस तरह से आप इसमें समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग कितना इम्पोर्टेंट है किसी कंपनी के लिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और क्या उसका फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या कितने उसके पास एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, कितना उसके पास कैश है, कितना कैश एट बैंक है, कितना कैश इन हैंड है, और किस तरह से वो अपनी लायबिलिटी को पे करने में कैपेबल है। Thank you. Have a nice day. If you face any confusion, then you can ask or comment in Google Classroom. And dear student, आप लोग सभी लोग इसका प्रॉपर नोट्स अपने फेयर कॉपी में मेंटेन करते रहिए। जब भी आपको ऐसा इन्फॉर्म किया जाएगा तो आप कॉपी में इसको कंप्लीट करके लाइएगा। थैंक यू।